Hello, my dear students. Welcome in another video lecture of our invertebrate structure and function paper. In this video lecture, we are going to discuss about the larval forms of Echinodermata. So, you might have learnt about the echinoderms that they are having radially symmetrical body, but in case of these larvae of echinoderm, they are bilaterally symmetrical. So, this is the characteristic feature of larval forms of Echinodermata, and they are free swimming larvae. So we know that the larval forms are included in the indirect development of animals. So in different classes of echinoderms, different types of larvae completes the development. So let us start. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द क्लास एस्टेरॉइडी. एस्टेरॉइडी क्लास क्या होती है? सो एस्टेरॉइडी क्लास इज हैविंग सच एन इकाइनोडर्म्स जिनमें जो स्टार फॉर्म में होंगे या फिर स्टार, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है स्टारफिश. सो टू टाइप ऑफ डेवलपमेंट अकर्स इन एस्टेरॉइडी क्लास, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट. तो इनडायरेक्ट जो होगा दैट विल हैव अ फ्री स्विमिंग लार्वा, एंड दिस after hatching the larva develops into the cilia band. Ciliary bands will be developed on its body, and this larva will start a free swimming life. तो यहाँ पे जो है दो lateral longitudinal locomotory ciliated bands होंगे. You can observe here lateral longitudinal जो ciliated bands will be there. So you can it's not that much clear here, but still it is having that locomotion के लिए cilia जो होगा वो present होगा, and दिस बैंड्स विल हेल्प इन द फ्री स्विमिंग. जो ये जो लार्वे है, सो दे विल फीड ऑन द एटम्स, डायटम्स, एंड दे आर हैविंग रियली simple and clear life. And this larvae, so first of all, the first larval stage which hatches from the egg directly is called as bipinnaria larva. So this bipinnaria larva is having the life of just it develops from the egg in 2 to 7 days, and later on after attaining a bit maturity. So bipinnaria larva, after free swimming existence for a few weeks, it changes into the ब्रैंक्योलेरिया लार्वा. यू कैन ऑब्जर्व हियर ये जो दूसरा वाला लार्वा है, सो ये बाइपिनेरिया लार्वा कन्वर्ट हो जाता है इनटू द ब्रैंक्योलेरिया लार्वा इन केस ऑफ एस्टेरॉइड्स. एस्टेरॉइडी जो क्लास है वहाँ पे, तो यहाँ पे दो लार्वल फॉर्म्स होंगे एस्टेरॉइडी क्लास में. एंड दिस बाइपिनेरिया लार्वा आफ्टर डेवलपिंग इनटू और आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू ब्रैंक्योलेरिया लार्वा, तो यहाँ पे जो दो प्री ओरल लोब जो है, शॉर्ट आर्म्स, यहाँ पे देख सकते हो आप, शॉर्ट आर्म्स प्रिपेयर होते हैं. सो दीज आर्म्स आर कॉल्ड एज ब्रैंक्युलर आर्म्स, एंड एक्चुअली दे आर 3 इन नंबर. सो दो जो होंगे प्री ओरल होंगे और एक होगा मीडियन आर्म. So that will help in free swimming also, or it also has the coelomic extension or adhesive cells होंगे यहाँ पे at the tip of these arms, and anterior region जो है it will act as like a stalk sometimes, and sometimes it will act like a chamber which converts into a young one or young star. ये जो होगा तो ये जो coelomic chamber है या फिर so it will help in the formation of the young one, and lastly this will just transform into the young star, and later on it will detach from the that itself and starts leading a free life. So here the first class asteroides larval forms ends up. Next is the Ophiuroidea is another class. Ophiuroidea is having snake-like animals or snake-like echinoderms which are snake-like in appearance. So bristle star is the common example of that. सो जो प्लूटस लार्वा होता है वो इंक्लूडेड होता है इनटू द ऑफिरोइडी क्लास. तो यहाँ पे जो प्लूटस लार्वा है इज फ्री स्विमिंग टाइप ऑफ लार्वा, और ब्रिसल स्टार का लार्वा है, अभी मैंने बताया था. एंड इसको यहाँ पे जो ब्रिसल स्टार का प्लूटस लार्वा है उसको बोला जाता है ऑफी प्लूटस, जस्ट बिकॉज इट इज़ बिलोंगिंग टू द क्लास ऑफियूरोइडी.
इसीलिए इसको ऑफिप्ल्यूटस लार्वा बोला जाता है, एंड इट इज़ सिमिलर टू द इकाइनोप्ल्यूटस। वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगी। यू कैन ऑब्जर्व हियर आई एम हैविंग टू पिक्चर्स ऑन इट सिंगल स्लाइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑफिप्ल्यूटस। सो ये जो ऑफिप्ल्यूटस लार्वा है, इट इज़ हैविंग फ्यूअर आर्म्स जो होंगे, इसमें कुछ आर्म्स प्रेजेंट होंगे, देन लैटरल जो यहाँ पे जो लैटरली प्रोजेक्टेड होंगे, मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं है उसके आर्म्स उतने, और जो लैटरल लाइन पे या लैटरल साइड पे प्रेजेंट होंगे, एंड दिस आर द आर्म्स विच विल हेल्प इन द लोकोमोशन। एंड ऑफिप्ल्यूटस जो होगा दैट विल डेवलप, the development will be take place in ovaries, and the aborted plutus larva is devoid to the arms and anus, and later it will be developed into the young one. Next class is Echinoidae. So Echinoidea is the another class which is having the hedgehog like forms of echinoderms. So ये जो सेमी स्पेरिकल होते हैं, विदाउट आर्म्स होते हैं, जो पहले हमने दो की बात की वहाँ पे आर्म्स प्रेजेंट है, और जो दूसरे जो थर्ड वन है इकाइनोइडिया, तो यहाँ पे आर्म्स प्रेजेंट नहीं है, एंड दिस इज हैविंग द एनिमल्स सी अर्चिन्स जिसको हम बोलते हैं, वो इंक्लूडेड होते हैं इन Echinoidae class. The larva is formed after gastrulation. Gastrula becomes conical one side, and later on it develops into the flattens to the form the oral surface. So you can observe here, ये जो है गैस्ट्रुलेशन के बाद की जो भी डेवलपमेंट होगी, तो गैस्ट्रुलेशन के बाद ये जो इकाइनोप्ल्यूटस लार्वा है, मैंने अभी बोला कि प्ल्यूटस लार्वा प्रेजेंट होता है, सो दिस इज ऑल अनदर क्लास विच इज़ ऑल्सो हैविंग अ प्ल्यूटस लार्वा, लेकिन यहाँ पे जो प्ल्यूटस लार्वा है हम इसको इकाइनोप्ल्यूटस लार्वा बोलेंगे, जस्ट बिकॉज इट इज़ बिलोंगिंग टू द क्लास इकाइनोइडी, इसीलिए हम इसको इकाइनोप्ल्यूटस लार्वा बोल रहे हैं. So larva begins to form projections which develops into the arms, and there are 6 arms, namely preoral, anterolateral, preoral एक होगा, anterolateral एक होगा, anterodorsal एक होगा, postoral एक होगा, posterior-dorsal एक होगा, and lastly posterior-lateral एक होगा. And these 6 arms will are actually the characteristic features of Echinopleurus larva. जो स्टार्टिंग के 2 आर्म्स होंगे, यहाँ पे आपको सिर्फ 4 दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअली 6 होते हैं, एंड समटाइम्स दे दिस इकाइनोप्ल्यूटस लार्वा ऑल्सो हैव 5 और 4 पेयर्स ऑफ आर्म्स ऑल्सो. ज़रूरी नहीं है कि वहाँ 6 ही प्रेजेंट हो, कुछ केसेस में वहाँ 4 या 5 भी हो सकते हैं. और द बेस्ट या फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है इकाइनोप्ल्यूटस लार्वा का, तो वो हो सकता है कि इट इज़ हैविंग ब्रॉड एंड, और जो आर्म होगा वो यूजुअली बैकवर्डली प्रोजेक्टेड होता है. Echinopleurus is microscopic free swimming larva in the water, and it develops within 7 to 30 days में वो एक एडल्ट में डेवलप हो जाएगा, एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. Now let us proceed to the next larval form which is the larval form of Holothuroidea. क्लास. तो होलोथुरोइडिया क्लास में 2 लार्वल स्टेजेस हैं. फर्स्ट ऑरिकुलेरिया लार्वा है, एंड डोलियोलैरिया लार्वा है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ द ऑरिकुलेरिया लार्वा एंड दिस इज़ द डोलियोलैरिया लार्वा. After gastrulation and formation of coelomic sacs and guts, embryo becomes free swimming larva called as auricularia larva. तो यहाँ पे जो Holothuroidea class है, it is having, sorry I have just forgot to explain, it is including the animals which are sea cucumber forms. यहाँ पे there are no spines, no arms are present, एंड सी कुकुम्बर जो है होलोथुरिया जिसको हम बोलते हैं, सो वो इंक्लूडेड होते हैं होलोथुरोइडी में. ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू. तो यहाँ पे जो इसके लार्वल फॉर्म है, तो वो गैस्ट्रुलेशन के बाद में एक सिलोमिक सैक और गट प्रिपेयर होके एक एम्ब्रियो का जो फॉर्म प्रिपेयर होता है, तो वो फ्री स्विमिंग लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, एंड दैट लार्वा इज कॉल्ड एज ऑरिकुलेरिया लार्वा. विद इन 3 days इट डेवलप्स, एंड इट इज़ ट्रांसपेरेंट पेलेजिक लार्वा होता है, एंड इट स्विम्स अबाउट बाय द सीलिएटेड बैंड्स. जैसे कि जो फर्स्ट लार्वा था बायपिनेरिया लार्वा, तो वहाँ पे जैसे सीलिएटेड बैंड्स थे, वैसे ही सीलिएटेड बैंड्स यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं, जो प्री ओरल लूप एंड एनल लूप फॉर्म करते हैं या प्रिपेयर करते हैं.
and later on it develops into the another form of larva, that is Doliolaria larva. Doliolaria larva is a transitional stage from Auricularia larva. It appears barrel shaped, देख सकते हो यहाँ पे एक बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर है, एंड इट इज़ जस्ट लाइक द डोलियोलेरिया लार्वा ऑफ क्रिनोइड्स. तो क्रिनोइड्स इज द अनदर क्लास जिसमें हमको डोलियोलेरिया लार्वा पढ़ना है. सो वैसे ही कुछ एक स्ट्रक्चर होता है जो बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर है, एंड इट इज़ हैविंग कंटिन्यूअस सीलिएटेड बैंड. तो यहाँ पे 3 से 5 सीलिएटेड बैंड्स होंगे एक कुछ सर्टेन इंटरवल्स पे, जो क्या होंगे मतलब यहाँ पे 3 फ्लैजेला या फिर थोड़ी दूर के बाद में 5 फ्लैजेलास विल बी देयर which will help in the locomotion, we can say. Sometimes it is also known as the pentacula larva. तो ये जो डोलियोलेरिया लार्वा है ऑफ होलोथुरोइडिया, इसको पेंटाक्यूलेटा पेंटाक्यूला लार्वा भी बोला जाता है, इसको पेंटाक्यूला लार्वा भी बोला जाता है. एंड इट इज़ larval form which it just settles down at the bottom of the sea, and it just start developing, or it just start leading an adult mode of life. So ये जो फर्स्ट जो ऑरिकुलेरिया लार्वा होगा उससे डेवलप होगा डोलियोलेरिया लार्वा, जिसको पेंटैक्टुला लार्वा भी बोला जाता है इन केस ऑफ होलोथ्रोइडिया. एंड वहाँ पे फिर वो जो सी क्यूकम्बर है तो वो क्या होता है एक बेसल फॉर्म पे या बेसल पार्ट पे होता है सी के. सो वो वहाँ पे जाके सेटल हो जाएगा, एंड लेटर ऑन इट विल स्टार्ट अ लाइफ ऑफ अडल्ट. Now last larval form is the larval form of class Crinoidea. Crinoidea जो है it includes lily form of echinoderms जो lily like structure होते हैं. तो sea lilies are the most common example of Crinoidea class, and it is having only one type of larva, that is Doliolaria larva. The Doliolaria larva is barrel shaped larva. It hatches as a free swimming larva. Body has 4 to 5 ciliated bands with an apical sensory plates. तो यहाँ पे ये देख सकते हो apical sensory plate के साथ यहाँ पे 4 to 5 यहाँ पे देख सकते हो 3, 4 या 5 bands होते हैं cilias के. You can observe here there are cilias are present, and adhesive pits होते हैं. First ciliated band जो होगा वहाँ पे, so first ciliated band will have adhesive pit, and near apical plate the mid ventral line is present, and जो second and third ciliated band होगा उसके पास में स्टोडियम या फिर वेस्टिब्यूल जो होता है वो present होता है. and larva attaches itself an internal organ will rotate एट द 90 डिग्री ऑफ एंगल. जो लार्वा क्या होगा पहले बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगा कहीं किसी सबस्ट्रैटम पे, या क्योंकि जो सी लिलीज होते हैं वो एक सबस्ट्रैटम के पास ही जुड़े रहकर अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करते हैं. तो ये जो लार्वा है फ्री स्विमिंग लार्वा होगा डोलियोलेरिया, लेकिन क्रिनोइडिया का. तो ये क्या करेगा कहीं एक परफेक्ट बेसल देखकर या सबस्ट्रैटम देखकर वहाँ पे अटैच हो जाएगा, और उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो 90 डिग्री मूव करेंगे. ओके, एट विच डायरेक्शन इट विल रोटेट एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम वेंट्रल टू पोस्टीरियर पोजीशन. तो वो वेंट्रल से पोस्टीरियर पोजीशन में 90 डिग्री के एंगल पे मूव कर जाएंगे. एंड लार्वा फ्रॉम अ स्टॉक and is now referred as a पेंटाक्रिनोइडिया लार्वा. तो वो जब वहाँ पे सेटल हो जाता है और फिर वो अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो रोटेट कर जाते हैं 90 डिग्री एंगल पे, तब उस लार्वा को या तो सिस्टेडियन लार्वा बोला जाता है या पेंटाक्रिनोइड लार्वा बोला जाता है. एंड दिस लार्वा विच आफ्टर सम टाइम मेटामॉर्फोसिस इनटू द अडल्ट, लेटर ऑन वो एक अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है. सो हियर ऑल द टाइप्स लार्वल टाइप्स ऑफ इकानोडर्माटा एंड्स अप. Hopefully you have understood this lecture. Thanks for watching. Have a nice day.